So we have seen in the last session, we have already started the primitive data types and wrapper classes concepts, right? So today we are going to see practical related to the wrapper class and typecasting. Okay, so we have seen that every primitive data type has a corresponding wrapper class in Java. So those classes, we have already seen one integer class, right? In the java.lang package. All these classes are there in the java.lang package. So there are two concepts in the wrapper class, that is autoboxing and unboxing, that we are going to see today's example, autoboxing and unboxing. Okay. So first of all, to see this example, as I said, all the integer parts or integer data types like byte, short, int, long, float, and double, all these are numeric data types, right? So all these are the part of a number class. All these are child of a number class. So number class has few methods like int value, long value, float value, double value, byte value, okay, short value. All these methods are there in the number class, which we can use for converting any value into any type of value. Okay, so here we are going to use the method int value for storing the data. So first of all, I am going to create one integer variable. I am assigning one value to it, that is 10. A is equals to 10. I have assigned this value. So when we are using this primitive data type, so internally Java uses the concept autoboxing. That is nothing but it autoboxes or converts this primitive data type into integer object, like integer A is equals to new integer. It will give the value 10. Okay, so here we are using, sorry, new integer, not like this. So it will create, it will use one method from the integer class. That method is value of method, which is used for converting any value to integer. Okay, so the method is value of method. So here we are using value of method for converting any data to string data to integer. So here we are using integer dot value of method, and here we are passing the value 10. Okay, so this is happen internally when you are creating any primitive type data type. Okay, so whenever you are using primitive data type and we are assigning some value to it, so in the autoboxing concept, it uses integer classes or the corresponding classes value of method to create one integer object. Okay, so this is the autoboxing concept where it is automatically converted. The primitive data type is automatically converted into its corresponding wrapper class object. Okay, this is one way. Now, if we are creating any object using integer class, integer a1 is equals to new integer. Here I am passing some value, that is suppose 67. Okay, so we are basically creating object. Okay, now this, as I said, this is a automatically conversion will be done by the compiler itself. So in unboxing, we have to do this conversion by ourselves. So that is the unboxing concept. That means conversion of wrapper class object into its corresponding primitive data type. So we will use here one variable. Suppose the variable is X and I am using this A1. I'm assigning the A1 value to this. Okay, so this is the unboxing concept. Here we are converting object primitive classes, wrapper class object into primitive data type. Okay, this is the unboxing concept. And you can see we will use one method, that is a compare to method, to check whether these two objects are same or not.
So system.out.println compare to method I am using here. Okay. Here we are going to compare these two objects, that is A1 and X object. Okay, just to check whether these two have the same, or we will use compare to method for comparing two different values also. So we will use A1 dot compare to, I am giving another integer here. So we will use X directly. It will give you the value. If it is equal, it returns you integer value. Okay. So if both values are equal, then we will get the value as 0. Okay. If I will explain next part again. So we are getting 0. That means our both objects have the same value, that is a 67. If you can change here, if you want to change, you can check whether it with any other integer value as well. So A1 I'm comparing with 96. So we will get the value it is -1. Okay, so compare to method returns three values, that is 0, -1 and +1. Okay, that is 1. So 0 if both values are equal. If both values are equal, then we will get the 0 as the output. If the first value is lesser than the second one, then we will get the -1 output. Value is less than another. Okay, then we will get the -1 output, and one output will be given when the value is greater than another one. Okay, so these three values we will get. It can be greater than 0 value or less than 0 value also we will get. So basically most of the time we will get the -1 and 1 output itself. But अगर 1 और -1 नहीं मिल रहा है, 0 से ग्रेटर मिल रहा है, 0 से लेस मिल रहा है वैल्यू, तो भी कंपेयर टू करेक्ट वर्क कर रहा है. ठीक है. सो ऐसे दो कंसेप्ट है हमारे पास, ऑटो बॉक्सिंग एंड अनबॉक्सिंग इन द रैपर क्लासेस. सो हियर वी हैव यूज्ड. सो अगर हम इस तरीके से इंटीजर वेरिएबल डिक्लेयर करें और एनी प्रिमिटिव डेटा टाइप यूज करके वेरिएबल डिक्लेयर करें, तो इंटरनली वो मेथड वैल्यू ऑफ यूज करता है टू कन्वर्ट दैट इनटू ऑब्जेक्ट. ठीक है, उस ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करने के लिए वैल्यू ऑफ मेथड का वो यूज करता है. ये ऑटोमेटिक कन्वर्जन होता है. अनबॉक्सिंग कंसेप्ट हमें करना होगा, मैन्युअली होगा. जैसे कि आप ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हो, ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के बाद उसको आप डायरेक्टली असाइन कर सकते हो प्रिमिटिव डेटा टाइप के एक पर्टिकुलर वेरिएबल को. सो ये कंसेप्ट है अनबॉक्सिंग, जो करस्पॉन्डिंग प्रिमिटिव डेटा टाइप में कन्वर्जन हम कर रहे हैं. ठीक है. सो यहाँ पे हमने सिर्फ चेक किया कि दोनों ऑब्जेक्ट्स कंपेयर करने के बाद सेम है कि नहीं. अगर सेम है तो हमें 0 आउटपुट मिलता है. अगर सेम नहीं है तो either greater than 0 value or less than 0 value आपको मिलेगी. So this is all about the unboxing and autoboxing concept. Apart from that, there are multiple methods in each and every classes. हर एक प्रिमिटिव रैपर क्लास में बहुत सारे मेथड्स है. जैसे कि यहाँ पे मेथड्स है, आपको कुछ हेक्साडेसिमल स्ट्रिंग चेक करनी है, यहाँ पे आप मेथड्स यूज कर सकते हो. मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है, मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो उसके रिलेटेड बहुत सारे मेथड्स है. रिवर्स फाइंड आउट करना है तो रिवर्स मेथड है, मीन मेथड है, मैक्स मेथड है, सम मेथड है. ठीक है. सो ये बहुत सारे मेथड्स यहाँ पे दिए हैं. आप इसको सिर्फ यूज करो, यू विल गेट द वैल्यू रिक्वायर्ड वैल्यू एज पर गिवन यूज्ड मेथड. तो यहाँ पे अगर मैं यूज करती हूँ system.out.println, सम मेथड यूज करती हूँ, सम ऑफ इंटीजर. ठीक है. सम ऑफ इंटीजर मैं सेम system.out.println स्टेटमेंट में ऐड कर रही हूँ. तो यहाँ पे अब ये जो मेथड्स है इंटीजर क्लास के, ये मेथड्स आपके स्टैटिक इंट मेथड है. ठीक है. तो स्टैटिक है, इसकी वजह से स्टैटिक क्या होता है वो तो हम बाद में देखने ही वाले हैं, बट अभी के लिए इतना ध्यान में रखो कि स्टैटिक मेथड है तो इसको हमें क्लास नेम से एक्सेस करना है. सो द क्लास नेम इज इंटीजर डॉट
सम मेथड हम यहाँ पे यूज करेंगे। सम मेथड को दो पैरामीटर्स हम पास करने वाले हैं। सो दोनों यही दो वेरिएबल्स में पास करूंगी, एक ए वेरिएबल, एक A1 वेरिएबल। ठीक है, तो दोनों का कैलकुलेशन होके आपको सम यहाँ पे दिखाई देगा। सो वी आर गेटिंग द सम एज 77, 67 प्लस 10। ठीक है, ऐसे ही मिन मेथड है, मैक्स मेथड है, रिवर्स मेथड है, आपको जो यूज करना है आप कर सकते हो। अगर मैंने मिन यूज किया, यहाँ पे मैं मिनिमम फाइंड आउट करना चाहती हूँ इन दोनों में से, तो आप मिनिमम फाइंड आउट कर सकते हो 10। ओके, सिमिलरली अगर रिवर्स करना है, ये तो सिर्फ मैं इंटीजर क्लास के मेथड्स आपको बता रही हूँ। इंटीजर डॉट रिवर्स मेथड है, यहाँ पे आप वैल्यू भी दे सकते हो। ठीक है, ये वैल्यू को भी रिवर्स करके आपको दिखाएगा, जो भी वैल्यू आपने दी है उसको रिवर्स करके दिखाएगा, बट ये आपके रेंज के बाहर होगा क्योंकि ये रिवर्स मेथड थोड़ा सा अलग तरीके से काम करता है। ठीक है, ये आपके जो भी वैल्यू है उसको रिवर्स, मतलब डिजिट्स रिवर्स नहीं होते हैं, तो ये टूज कॉम्प्लीमेंट का रिवर्स, बिट्स का रिवर्स करने के बाद जो वैल्यू आता है वो आपको मिलेगा। सो दैट इज वाई ये एक्चुअली रिवर्स डिजिट का कोड मेथड नहीं है। ठीक है, सो ये हो गया आपकी इंटीजर के क्लासेस, सॉरी इंटीजर क्लास के कुछ मेथड्स। वैसे ही नंबर क्लास के जो मेथड्स है ये वाले बाइट वैल्यू, शॉर्ट वैल्यू, वो भी आप इसके ऊपर का यूज कर सकते हो। सपोज मुझे सेम इंटीजर वैल्यू का बाइट वैल्यू चेक करना है, बाइट वैल्यू ऑफ इंटीजर। तो बाइट वैल्यू आप डायरेक्टली कॉल कर सकते हो, बट बाइट वैल्यू मेथड जो है वो मेथड आपके यहाँ पे दी गई है नंबर क्लास में। ठीक है, तो आप इसको डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हो, इंटीजर क्लास के थ्रू भी एक्सेस कर सकते हो, बट ये हम ऑब्जेक्ट के थ्रू एक्सेस करेंगे। ठीक है, सो ऑब्जेक्ट के थ्रू अगर हमें एक्सेस करना है तो मैं A1 ऑब्जेक्ट को यूज करती हूँ, या फिर आप एक्स वेरिएबल को भी यूज कर सकते हो। A1 ऑब्जेक्ट यूज करके A1 डॉट बाइट वैल्यू हम कन्वर्ट करेंगे, तो आपको बाइट वैल्यू दिखाई देगी। जो वैल्यू है वो रेंज के अंदर है, दैट इज वाई वो सेम आपको दिखाई दे रही है। अगर ये वैल्यू रेंज बाइट के रेंज के बाहर होती, दैट इज सपोज ये वैल्यू होती जो बाइट रेंज के बाहर है, तो फिर हमें उसका इक्विवेलेंट बाइट वैल्यू मिलता है जो बाइट के रेंज में आएगा। ठीक है, सो दैट इज वाई यहाँ पे डेटा जो है वो बाइट वैल्यू, शॉर्ट वैल्यू भी आप चेक कर सकते हो, जो भी चाहिए। लॉन्ग भी आप इसको कन्वर्ट कर सकते हो, फ्लोट एंड डबल के लिए भी आप इसको यूज कर सकते हो। ठीक है, वैसे ही यहाँ पे और एक मेथड है जो कि हम वैल्यू ऑफ मेथड जो यहाँ पे मैंने दिखाई थी वही वैल्यू ऑफ मेथड हम यहाँ पे देखेंगे, वैल्यू ऑफ इंटीजर। तो ये मैं यहाँ पे वैल्यू ऑफ मेथड जो है वो इंटीजर डॉट वैल्यू ऑफ है। ठीक है, जो स्टैटिक मेथड है उसकी वजह से हमें इंटीजर क्लास नेम से ही उसको एक्सेस करना पड़ता है। मैं कुछ वैल्यू दे रही हूँ तो इसका सिर्फ वो कन्वर्ट करके एक इंटीजर वैल्यू है ये कंसिडर करके दिखाएगा, नथिंग एल्स। ओके, जो वैल्यू मैंने दी है वो वही दिखाएगा, नथिंग एल्स। सो ये सिर्फ वैल्यू दिखा रहा है आपको, तो वैल्यू ऑफ मेथड का आप डिस्क्रिप्शन देख सकते हो। ये इंटीजर रेफरेंस रिटर्न करता है, इंटीजर रेफरेंस मतलब इंस्टेंस बोल सकते हैं आप उसको, ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है। जो भी आप वैल्यू दे रहे हो उसका ऑब्जेक्ट कन्वर्ट करके रिटर्न करेगा। ठीक है, तो ये वैल्यू ऑफ मेथड है। इसके अलावा अगर हमारे पास कोई स्ट्रिंग वैल्यू है, स्ट्रिंग फॉर्मेट में अगर हमने कोई वैल्यू दी है, स्ट्रिंग फॉर्मेट में अगर कोई नंबर दिया है, ठीक है, इस नंबर को स्ट्रिंग फॉर्मेट से मुझे इंटीजर फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए हमारे पास मेथड है पार्सेंट। पार्सेंट मेथड है जो यूज होता है स्ट्रिंग टू इंटीजर कन्वर्जन, बट वो वैलिड स्ट्रिंग होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम यूज करेंगे इंटीजर डॉट पार्सेंट, एंड इसके अंदर हम ये स्ट्रिंग वेरिएबल पास करेंगे। ठीक है,
तो ये स्ट्रिंग वेरिएबल पास करने के बाद आपका पार्सिंट मेथड जो है, जो स्ट्रिंग हमने दिया है उसको कन्वर्ट करेगा इंटीजर में, एंड वो आप यूज कर सकते हो बाद में कभी भी एज अ स्ट्रिंग इंटीजर वैल्यू। ठीक है, तो ये पार्सिंट मेथड है। ऐसे ही बाकी जो प्रिमिटिव टाइप्स है, उसके जो रैपर क्लासेस है, उनमें भी इसी तरीके से मेथड्स है। जैसे कि हमने इंटीजर का पार्सेंट किया है, वैसे ही डबल या फ्लोट क्लास, डबल है वैल्यू, अगर मैंने यहाँ पे कुछ वैल्यू दी है, ठीक है, इस तरीके से भी आप वैल्यू सेव कर सकते हो। ये भी इंटरनली वैल्यू ऑफ मेथड ही यूज करेगा डबल क्लास का। तो इसमें भी हम, अगर कोई स्ट्रिंग डेटा है उसको हमें, अभी इस डबल को मुझे अगर कन्वर्ट करना है इन बाइट वैल्यू या फिर शॉर्ट वैल्यू में, ठीक है, बाइट वैल्यू ऑफ डबल में करती हूँ, तो आप इसको कर सकते हो, बट ये सिर्फ आपको इंटीग्रल पार्ट दिखाएगा, क्योंकि बाइट इज नॉट अ डेसिमल डेटाबेस, सॉरी डेटा टाइप, राइट। डेसिमल यहाँ पे नहीं आएंगे, तो ये सिर्फ आपको उस, ये अकॉर्डिंग टू दिस नंबर वो कन्वर्ट करके इक्विवेलेंट जो भी उसका रेंज में जो भी बैठेगा बाइट वैल्यू, वो आपको दिखाएगा। सपोज ये सेम स्ट्रिंग एस में यूज करती हूँ, इस सेम एस ऑब्जेक्ट को मुझे अगर कन्वर्ट करना है डबल फॉर्मेट में, तो डबल क्लास हैज वन मेथड दैट इज अ पार्स डबल। ठीक है, ये डबल क्लास का मेथड है पार्स डबल, जिसको आप यूज कर सकते हो कोई भी नंबर को डबल फॉर्मेट में पार्सिंग करने के लिए, कन्वर्ट करने के लिए, कि सेम ऑब्जेक्ट में दे रही हूँ, एस वेरिएबल में दे रही हूँ। ठीक है, सो देखो आप यहाँ पे जो वैल्यू है उसका पार्स डबल हमें मिला, सिर्फ यहाँ पे 0.0 ऐड हुआ है, क्योंकि डबल है इसकी वजह से पॉइंट वैल्यू इसमें ऐड हो गई। ये बाइट वैल्यू हमें मिली है डी की, जो -67 इक्विवेलेंट आ रही है। अभी आप सोचोगे कि ये कैसे आ रही है, तो इसका टूज कॉम्प्लीमेंट स्टोर हो रहा है, राइट। सो इसका IEEE 754 फॉर्मेट में डेटा स्टोर हो रहा है, तो उसके वैल्यू के इक्विवेलेंट जो भी आपका डेटा बाइट वैल्यू के रेंज में बैठेगा, वही यहाँ पे बिट्स रिप्रेजेंटेशन के बाद ही आपको दिखाई देगा। अगर आपको बिट्स रिप्रेजेंटेशन देखना है, तो मेथड हमने ऑलरेडी लास्ट इसमें देखा था, दैट इज टू बाइनरी स्ट्रिंग। ये मेथड है इंटीजर क्लास का, लॉन्ग क्लास का भी है टू बाइनरी स्ट्रिंग, जहां पे आप इस सारे नंबर्स का बिट्स देख सकते हो, बिट्स रिप्रेजेंटेशन देख सकते हो। तो ये हो गए आपके कुछ मेथड्स जो हम रैपर क्लासेस में देखते हैं। ठीक है, इसी तरीके से ये बाइट वैल्यू मैंने एक ही बताया, आप बाकी के मेथड्स भी यूज कर सकते हो। शॉर्ट वैल्यू जो नंबर क्लास में है, ये सबके लिए अवेलेबल है, शॉर्ट वैल्यू है, देन डबल वैल्यू है, फ्लोट वैल्यू है, लॉन्ग वैल्यू है, तो आप कोई भी यूज कर सकते हो, नो प्रॉब्लम विद दैट। ठीक है, जो चाहिए वो यूज कर सकते हो सारे क्लासेस में। हाँ, अलग अलग मेथड्स जरूर रहेंगे। अभी ये डबल क्लास है, इस डबल क्लास में वैल्यू ऑफ मेथड तो एज इट इज है, पार्स डबल मैंने आपको बताया। ठीक है, ये सारे बाइट वैल्यू, शॉर्ट वैल्यू, इंट वैल्यू के मेथड्स है। बट जैसे मैंने बोला कि यहाँ पे भी सम मेथड है, मैक्स मेथड है, मिन मेथड है, कंपेयर टू मेथड है, जो आप कंपैरिजन के लिए यूज कर सकते हो दूसरे किसी डबल वैल्यू के साथ। सो ये बेसिक मेथड्स है जो नंबर फॉर्मेट में आते हैं, तो वो मेथड्स आपको सब इसके क्लासेस के अंदर दिखाई देंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट रैपर क्लास, auto boxing and unboxing concept and few methods of wrapper classes. Any doubt? समझ में आ गया है? कुछ डाउट है तो बताओ, अगर नहीं है तो हम नेक्स्ट एग्जाम्पल करेंगे। क्लियर है? यस मैम। ओके, सो हमने टाइप कास्टिंग कंसेप्ट देखा था। होप यू रिमेम्बर द टाइप कास्टिंग कंसेप्ट, जिसमें हमने वाइडनिंग एंड नैरोइंग कंसेप्ट देखा था, जहां पे आप छोटे डेटा टाइप से डेटा जो है वो बड़े वाले डेटा टाइप में कास्ट कर सकते हो, वाइडनिंग टाइप कास्टिंग एंड नैरोइंग टाइप कास्टिंग। राइट, ये दो हमने देखे थे कंसेप्ट, जहां पे वाइडनिंग मतलब छोटे डेटा टाइप से स्मॉल डेटा टाइप टू
बिगर डेटा टाइप यू कैन से, सिंपल वर्ड्स में बता रही हूँ, ठीक है, स्मॉल डेटा टाइप टू बिगर डेटा टाइप, यू कैन सेव द डेटा। ये ऑटोमेटिक होता है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, दिस विल बी डन ऑटोमेटिकली। नैरोइंग टाइप कास्टिंग जो है वहां पे आपका बिगर डेटा टाइप से डेटा स्मॉलर डेटा टाइप में कन्वर्जन हम करते हैं। ये ऑटोमेटिक नहीं होता, इसको हमें मैन्युअली करना पड़ता है, बाय द प्रोग्रामर विल डू दिस, ये मैन्युअल होता है, राइट। ऑटोमेटिक कन्वर्जन जो होता है वहां पे लॉस ऑफ डेटा नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि छोटे डेटा टाइप से आपका डेटा बड़े वाले डेटा टाइप में जा रहा है, तो ऑब्वियसली उसकी मेमोरी साइज भी बड़ी होगी, उसकी रेंज भी बड़ी होगी, दैट इज वाई नो लॉस ऑफ डेटा इन वाइडनिंग पार्ट, बट लॉस ऑफ डेटा हैपन्स इन नैरोइंग पार्ट। क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पे नैरोइंग में आपका जो डेटा है वो बड़े वाले डेटा टाइप से छोटे वाले में कन्वर्ट होता है, दैट मीन्स आपका जो एक्चुअल बड़े वाले डेटा टाइप से छोटे वाले में, मतलब हम कह सकते हैं कि आपका डेटा दोनों इसमें ये हो सकता है, मेमोरी स्पेस भी उसको कम कम लगती है छोटे वाले डेटा टाइप को, बड़े वाले डेटा टाइप को ज्यादा लगती है। वैसे ही रेंजेस बड़े वाले डेटा टाइप के ज्यादा होंगे, छोटे वाले डेटा टाइप का रेंज कम होगा, तो लॉस ऑफ डेटा पॉसिबल है, ठीक है। ये हम मैन्युअली करेंगे। तो ये टाइप कास्टिंग कंसेप्ट है जो अभी हम देखेंगे टाइप कास्टिंग के एग्जाम्पल में, ठीक है। यहाँ तक किसी को कुछ डाउट है तो बोलो, नहीं है तो मैं नेक्स्ट पार्ट बताती हूँ। यस मैम, नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं। वाइडनिंग टाइप कास्टिंग कंपाइलर खुद से करता है, ठीक है, इसको हम इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग भी बोलते हैं, एज इट इज डन इम्प्लिसिटली, इट इज इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग, ठीक है। ये इम्प्लिसिटली होता है, दैट इज वाई इसको हम इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग भी बोलते हैं। अभी मैं यहाँ पे एक इंटीजर डेटा टाइप लेती हूँ, सो रेंज, मैम इम्प्लिसिट मतलब? सॉरी, ये इम्प्लिसिटली होता है मतलब ऑटोमेटिकली होता है, कंपाइलर खुद से ये वाइडनिंग करता है, टाइप कास्टिंग वाइडनिंग जो प्रोसेस है वो कंपाइलर खुद करता है, ठीक है। ये ऑटोमेटिक होता है, ये इम्प्लिसिट होता है, ऑटोमेटिक इम्प्लिसिटली होता है, इम्प्लिसिट मतलब इंटरनली जो कंपाइलर खुद करता है, ठीक है, दैट इज वाई वाइडनिंग टाइप कास्टिंग को हम इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग भी बोलते हैं, ओके। सो इम्प्लिस वाइडनिंग में मतलब क्या होता है, सो बाइट टू शॉर्ट आप कन्वर्ट कर सकते हो, शॉर्ट टू इंटीजर कन्वर्ट कर सकते हो, इंट टू लॉन्ग, लॉन्ग टू फ्लोट, एंड फ्लोट टू डबल, ये सब आप कन्वर्जन कर सकते हो, ठीक है। इसी को अगर हमने रिवर्स में किया तो आपका नैरोइंग होगा, ठीक। इसी को अगर, हाँ, दूसरी बात नैरोइंग कंसेप्ट ये हम मैन्युअली करते हैं, ठीक है, ये मैन्युअल होता है, प्रोग्रामर खुद करता है, सो दैट ये एक्सप्लिसिट होता है, एक्सप्लिसिटली हमें करना पड़ता है, दैट इज वाई इसको हम एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग भी बोलते हैं, ठीक है। इसको हम टाइप एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग भी बोलते हैं। सो यहाँ पे टाइप कास्टिंग उल्टा होगा, मतलब डबल से आप डेटा चेंज करके फ्लोट में डाल रहे हो, या फ्लोट का डेटा आप लॉन्ग में डाल रहे हो, ठीक है। सो इस तरीके से अगर आप परफॉर्म कर रहे हो तो ये आपका एक्चुअली नैरोइंग होगा, एंड नैरोइंग में आपका डेटा लॉस हो सकता है, राइट। सो यहाँ पे मैं इसको दोनों के एग्जांपल्स बताऊंगी। सबसे पहले और एक कंसेप्ट देखते हैं, इंटीजर अगर मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर कर रही हूँ, इस इंटीजर वेरिएबल में हम कैरेक्टर भी सेव कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि आपका डेटा जो है वो आस्की कोड, यूनिकोड बेसिस पे, आस्की कोड के बेसिस पे डेटा स्टोर होता है, मैंने आपको एक्सप्लेन किया था आस्की कोड्स क्या है। दैट इज वाई जो आस्की कोड्स रहेंगे वो इंटीजर फॉर्मेट में होते हैं, उसकी रेंज क्या होती है, आस्की कोड्स की रेंज रहती है 0 to 255,
ठीक है। सो 0 to 255 वैल्यूज में से कोई भी नंबर, इंटीजर नंबर आप सेव कर सकते हो। सो दैट इज वाई हम यहाँ पे इंटीजर डेटा टाइप में कैरेक्टर डेटा स्टोर कर सकते हैं, क्योंकि इंटरनली ये ASCII कोड सेव करता है। ठीक है। तो इसको आप, कंपाइलर ये जो कर रहा है, कन्वर्जन कर रहा है कैरेक्टर डेटा टू इंटीजर, ये ऑटोमेटिक कन्वर्जन हो रहा है। ठीक है। ये कैरेक्टर टू कैर टू इंट कन्वर्ट हुआ, यहाँ पे कुछ भी आपको एरर नहीं दिखाई दे रहा है। ठीक है। ये ऑटोमेटिक कन्वर्जन हो रहा है, ये ऑटोमेटिक कंपाइलर खुद से कर रहा है। सो दिस इज ऑटो बॉक्सिंग, सॉरी, वाइडनिंग कंसेप्ट है। एंड अभी मैं सपोज यहाँ पे एक इंटीजर वेरिएबल डिक्लेयर कर रही हूँ एक्स, जिसमें मैंने वैल्यू दी है, ये वैल्यू दी है, इसको मुझे डबल डेटा टाइप में कन्वर्ट करना है। सपोज द डेटा टाइप, डेटा मैंने यूज किया डबल एंड वेरिएबल इज डी, जिसमें मैं एक्स वैल्यू सेव कर रही हूँ। ठीक है। सो दिस इज ऑल्सो कन्वर्जन इज डन फ्रॉम इंटीजर टू डबल, वाइडनिंग है, वाइडनिंग है। ठीक है। ये भी ऑटोमेटिक हो रहा है। क्यों ऑटोमेटिक हो रहा है? क्योंकि इसके लिए जो मेमोरी साइज लगती है, एक्स इंटीजर वेरिएबल के लिए जितनी भी मेमोरी साइज लगती है सेम, और उससे ज्यादा हमें डबल के लिए लगती है। आप चेक कर सकते हो दोनों वेरिएबल्स में कोई भी वैल्यू अलग अलग दिख रहे हैं या नहीं। अगर मैं यहाँ पे एक्स वेरिएबल की वैल्यू डिस्प्ले करूँ, प्लस मुझे डी वेरिएबल की भी वैल्यू डिस्प्ले करनी है, तो दोनों में आपको सेम वैल्यू दिखाई देगी, क्योंकि दोनों वेरिएबल्स में हमने सेम वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल के साथ असाइन किया है। ठीक है। सिर्फ यहाँ पे डेटा टाइप चेंज है, वाइडनिंग कर रहे हैं, डेटा टाइप हमने चेंज कर दिया। ठीक है। तो ये देखो दोनों के वैल्यू सेम है, सिर्फ ये डबल फॉर्मेट में है क्योंकि ये डेसिमल वैल्यू सेव करता है। ठीक है। सो अगर हमारे पास कोई डेसिमल वैल्यू है नहीं तो वो जीरो ऐड कर देगा। ओके। सो ये हो गया आपका वाइडनिंग कंसेप्ट, जहां पे डेटा आप कभी भी कास्ट कर सकते हो, वाइडनिंग कर सकते हो, टाइप कास्ट कर सकते हो, कास्टिंग फ्रॉम वन डेटा टाइप टू अनदर वन। कौन से भी इसमें से कौन से भी इसमें आप कर सकते हो। नॉट कंपल्सरी कि इसी ऐसे ही होना चाहिए, आप शॉर्ट का डेटा भी फ्लोट में कर सकते हो, इंट का लॉन्ग में कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। जैसे कि मैंने यहाँ पे कैरेक्टर का दिखाया है, इंटीजर टू डबल दिखाया है। सपोज इन्हीं दोनों का हम यूज करके दो अलग डेटा टाइप यूज करते हैं। सपोज ये बाइट है, रेंज ज्यादा है, तो इसकी रेंज में कम करती हूँ, आपको इमिडिएटली यहाँ पे एरर दिखाई देगा। ठीक है। रेंज के बाहर की वैल्यू है, तो इसकी वजह से 128 तक ही है, तो यहाँ पे हमें वैल्यू चेंज करनी पड़ेगी। इसको मैं फ्लोट में कन्वर्ट करती हूँ सपोज। ठीक है। बी वेरिएबल, यहाँ पे हम कन्वर्जन कर रहे हैं बाइट टू फ्लोट। आप दोनों के वैल्यूज यहाँ पे देख सकते हैं, बी वेरिएबल की वैल्यू एंड एफ वेरिएबल की वैल्यू विल बी सेम। बाइट टू फ्लोट हमने कन्वर्जन किया है। ओके। दोनों में वैल्यू सेम है, यहाँ पे सिर्फ पॉइंट वैल्यू ऐड हो गई जीरो की। ये हो गया आपका वाइडनिंग कंसेप्ट। ये सब कुछ वाइडनिंग है, ये ऑटोमेटिकली कंपाइलर खुद कर लेता है, उसको कुछ जरूरत नहीं पड़ती। नाउ हम इसको, ओके, इसका एक वाइस वर्सा भी पॉसिबल है, वो भी मैं बताती हूँ। सपोज हमने एक कैरेक्टर वेरिएबल डिक्लेयर किया है सी, जिसमें मैं वैल्यू सेव कर रही हूँ। ठीक है। ये नंबर है, ठीक है, जो मैंने कैरेक्टर सी के लिए दिया है। अभी मैं यहाँ पे 67 देती हूँ। ठीक है। 67 मैंने वैल्यू दिया है, एंड हम उसको इंटीजर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। इंटीजर वेरिएबल में सपोज देती हूँ C1 इज इक्वल्स टू सी मैंने दिया। ठीक है। तो यहाँ पे भी आपका जो है कैरेक्टर टू इंटीजर कन्वर्जन हम कर रहे हैं, कैर टू इंट। ठीक है। कैर टू इंट हमने किया, यहाँ पे भी वेरिएबल हम चेक करेंगे, सी वेरिएबल एंड C1 वेरिएबल। अभी मैंने तो यहाँ पे वैल्यू ही दी है 67, तो कैरेक्टर वही वैल्यू आपको यहाँ पे दिखेगी 67, बट
सी में आपको सी दिख रहा है क्योंकि 67 के असाइंड वैल्यू जो होगी कैरेक्टर की वो आपको दिखाई देगी। इसको मैं 65 अगर करती हूँ तो वो कैपिटल ए के लिए यूज होता है। रेंज है इसकी कैपिटल ए के लिए 65 यूज होता है, ठीक है। तो अगर मैंने सी में वैल्यू दी है, मतलब कैरेक्टर डेटा टाइप में अगर मैं नंबर देती हूँ, अगर वो 0 to 255 के बीच में नंबर है, तो वह एक्चुअली उसके असाइंड कैरेक्टर जो होगा वो सेव करेगा। एंड उसको अगर हमने इंटीजर कन्वर्जन भी किया तो भी आपको वैल्यू, जो इंटीजर वैल्यू हमने सेव की थी वही मिलेगी, ठीक है। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हो। कैरेक्टर टू इंटीजर, इंटीजर टू कैरेक्टर, ये पूरा ASCII कोड के ऊपर डिपेंडेंट होता है। तो ये ऑटोमेटिक होता है, इसको आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं। सब ये सब कुछ आपका वाइडनिंग कंसेप्ट हुआ। अभी नैरोइंग कंसेप्ट हम देखेंगे। सो नैरोइंग कंसेप्ट में एक्सप्लिसिट कन्वर्जन होता है, ठीक है। तो एक्सप्लिसिट कन्वर्जन में अगर मैं यही दो वेरिएबल्स लेती हूँ, डबल डी एंड इंटीजर एक्स, अगर मैं इसको कन्वर्ट अलग तरीके से करूंगी, या फिर हम अलग करते हैं, ठीक है, अलग वेरिएबल्स लेती हूँ सो दैट आपको समझ में आएगा। ये आपका वाइडनिंग है, वाइडनिंग टाइप कास्टिंग। एंड सेम तरीके से मैं करती हूँ नैरोइंग टाइप कास्टिंग। ये सिर्फ आपको आउटपुट समझ में आने के लिए लिख रही हूँ, ठीक है। तो नैरोइंग टाइप कास्टिंग में सपोज मैंने एक इंटीजर वेरिएबल लिया है y, जिसमें मैंने वैल्यू सेव की है, ठीक है। इस वैल्यू को सपोज मुझे अभी बाइट में कन्वर्ट करना है। तो जैसे हमने ऊपर किया था डायरेक्टली के डेटा टाइप डिक्लेयर करके उसमें वैल्यू सेव की थी, वैसे हम ट्राई करते हैं कि होता है कि नहीं। बट ये नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बाइट इज अ शॉर्ट स्मॉलर डेटा टाइप, इंटीजर इज अ बिगर डेटा टाइप, ठीक है। तो यहाँ पे ये इस तरीके से नहीं होगा। तो इसको आपको एक्सप्लिसिटली कन्वर्ट करना पड़ेगा, कास्ट करना पड़ेगा इंटीजर टू बाइट। अभी इसको एक्सप्लिसिटली कास्ट करने के लिए हमें ये ब्रैकेट्स यूज करने पड़ते हैं। एंड इस ब्रैकेट में आपको जिस डेटा टाइप में कन्वर्ट करना है उस डेटा टाइप का नेम देना होता है, दैट इज बाइट, ठीक है। तभी ये एक्सप्लिसिट वर्क करेगा। सो ये एक्सप्लिसिट है जो हमें करना पड़ता है। एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन हम कर रहे हैं फ्रॉम एक्सप्लिसिट कन्वर्जन फ्रॉम इंट टू बाइट। अभी देखो इंटीजर को 4 बाइट्स ऑफ मेमोरी लगती है, ठीक है। एंड बाइट डेटा सेव करने के लिए सिर्फ हमें 2 बाइट्स ऑफ मेमोरी लगती है। तो हमारा लॉस ऑफ डेटा तो मेमोरी के बेसिस पे ही हो गया। ये रेंज जो है वो बाइट में नहीं बैठती, करेक्ट। तो ये रेंज आपकी वैल्यू बाइट में आती ही नहीं है, क्योंकि इसकी बाइट की रेंज क्या होती है, -128 to 127 ओनली। तो इस रेंज को वो कन्वर्ट करेगा बाइट रेंज में। कैसे कन्वर्ट करेगा, जैसे मैंने बोला कि यहाँ पे अभी ये इंटीजर वैल्यूज है, तो ये टूस कॉम्प्लीमेंट डेटा स्टोर करता है, मतलब बाइनरी फॉर्मेट में डेटा स्टोर होता है। तो उसका बाइट का जो भी इक्विवेलेंट नंबर निकलेगा वो डेटा यहाँ पे बाइट डेटा टाइप में स्टोर करेगा। तो इसको हम देखते हैं। मैं इसी को दिखाती हूँ, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। वाई वेरिएबल की वैल्यू हम देखेंगे एंड एन वेरिएबल की वैल्यू भी हम देखेंगे। दोनों के आउटपुट अलग अलग आएंगे क्योंकि दोनों वेरिएबल्स में डेटा अलग अलग सेव हुआ है। सो यू कैन सी यहाँ पे इंटीजर वैल्यू जो है वो इतनी बड़ी है एंड उसका इक्विवेलेंट बाइट वैल्यू जो है सर वो हमें मिला है 81। तो वो बिट्स को डिस्ट्रॉय करके डिस्कार्ड करके ऑटोमेटिक कन्वर्जन वहां पे होता है। हमें सिर्फ एक्सप्लिसिटली यहाँ पे ये डिफाइन करना है कि किस डेटा टाइप में आपको कन्वर्ट करना है, ठीक है। अभी सेम तरीके से अगर मैं और दो डेटा टाइप यूज करती हूँ, सपोज डेटा टाइप है लॉन्ग, ठीक है, एल, वैल्यू में और बढ़ाती हूँ। एंड अभी इसको 8 बाइट्स ऑफ मेमोरी लगती है, ये रेंज के बाहर जा रहा है।
ठीक है। एंड यहाँ पे मैं लेती हूँ शॉर्ट एस, मुझे कन्वर्जन करना है एल वैल्यू का शॉर्ट डेटा टाइप में। सो यहाँ पे मैं लिखती हूँ शॉर्ट कन्वर्जन, एक्सप्लिसिट कन्वर्जन हम कर रहे लॉन्ग टू शॉर्ट। अभी लॉन्ग को 8 बाइट्स ऑफ मेमोरी लगती है, इसके लिए सिर्फ 2 बाइट्स ऑफ मेमोरी लगेगी। सो शॉर्ट डेटा टाइप में डेटा सेव कैसे होगा, राइट। सो यहाँ पे भी आपको इक्विवेलेंट वैल्यू मिलेगी जो अलग अलग रहेगी। शॉर्ट का एस वेरिएबल है वो भी मैं यहाँ पे दिखाती हूँ। सो शॉर्ट के रेंज के हिसाब से जो भी इक्विवेलेंट वैल्यू बिट्स डिस्कार्ड करने के बाद मिलती है वो आपको यहाँ पे दिखाई देगी। ठीक है। सो दैट इज वाई यहाँ पे लॉस ऑफ डेटा हो सकता है, होता ही है बेसिकली, कंसिडर करो, क्योंकि ये इतना बड़ा नंबर है। अगर आप कैलकुलेशंस करने के लिए आपको ये वैल्यू चाहिए और आप कन्वर्जन कर रहे हो तो फिर उसका मतलब क्या हुआ, उसको इक्विवेलेंट वैल्यू ही मिलेगी, तो उसमें लॉस ऑफ डेटा तो पॉसिबल है ही। एक्सप्लिसिट कन्वर्जन जब भी आप करते हो तो ध्यान देके करो कि उसका एक्सप्लिसिट कन्वर्जन आपको समझ एकदम अच्छे से आना चाहिए। जब भी जरूरत होगी, बहुत ज्यादा नीड है, तभी आप करोगे। हाँ, सपोज यहाँ पे आपने रेंज के अंदर जो भी है वही दिया। सपोज मैं यहाँ पे इंटीजर सेम वेरिएबल लेती हूँ, आई एन जे वेरिएबल लेती हूँ, ठीक है। इसको अगर वेरिएबल की वैल्यू मैंने दी जो बाइट के रेंज में है, ठीक है। अभी आउटपुट क्या आएगा वो हम देखेंगे। यहाँ पे इंट टू बाइट ही कन्वर्जन कर रही हूँ, जो वैल्यू है वो आपके बाइट के रेंज में है। तो दोनों में सेम आता है या नहीं आता है, दैट वी विल सी। दोनों में सेम आ गया, राइट। क्यों आया, क्योंकि जो इंटीजर की वैल्यू हमने दी थी वो बाइट के रेंज में है, तो आप यहाँ पे कन्वर्जन करोगे तो यहाँ पे लॉस ऑफ डेटा नहीं होगा। ओके। सो इस तरीके से अगर आपको कुछ डेटा आप यूज कर रहे हो और आपको कन्वर्जन करना है एक्सप्लिसिटली तो आप कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे डेटा लॉस नहीं होगा। ठीक है। क्लियर, अंडरस्टूड, वाइडनिंग एंड नैरोइंग, टाइप कास्टिंग दोनों समझ Yes. में आया? किसी को कोई डाउट है? श्वेता, पीयूष? No, नो ma'am. मैम। ओके, सो वी विल गो अहेड with the next part. नेक्स्ट पार्ट इज योर एक्सेस मॉडिफायर्स। ठीक है। हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एक्सेस मॉडिफायर्स, एक्सेस स्पेसिफायर्स हम बोलते हैं, नॉन एक्सेस मॉडिफायर्स, नॉन एक्सेस स्पेसिफायर्स रहते ही है। ठीक है। एक्सेस मॉडिफायर्स एज द नेम सजेस्ट, यहाँ पे क्या है, आपको एक्सेस बताते हैं कि आपका जो डेटा है, जो भी वेरिएबल्स है, मेथड्स है, क्लासेस है, उसको किस तरीके से आप एक्सेस कर सकते हो। सो आप वो विजिबिलिटी कंट्रोल भी इसको बोलते हैं। ठीक है। तो विजिबिलिटी आप मैनेज कर सकते हो यूजिंग दिस एक्सेस मॉडिफायर्स। तो यहाँ पे 4 एक्सेस मॉडिफायर्स होते हैं जावा में। सबसे पहला होता है प्राइवेट, सेकेंड वन इज डिफॉल्ट और नो मॉडिफायर, थर्ड वन इज प्रोटेक्टेड, लास्ट वन इज पब्लिक। ठीक है। तो जब हम क्लास क्रिएट करते हैं, एनी क्लास, जब हमने क्लास क्रिएट किया तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये पब्लिक करके बाय डिफॉल्ट आ रहा है। ठीक है। सो पब्लिक क्लास एंड मेन मेथड इज ऑल्सो पब्लिक। ऑलवेज मेन मेथड विल बी पब्लिक, क्योंकि मेन मेथड को हम कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं, करना चाहिए, एक्सेसिबल होना चाहिए। इसकी वजह से मेन मेथड हम पब्लिक ही रखते हैं, पब्लिक ही होती है। ठीक है। मेन मेथड जेवीएम कॉल करता है, ठीक है। तो कहीं से भी ये मेन मेथड को कॉल आना चाहिए, कॉल जाना चाहिए, दैट इज वाई इस मेन मेथड को हम हमेशा पब्लिक ही एक्सेस मॉडिफायर देते हैं। सो एक्सेस मॉडिफायर सबसे पहला स्टेटमेंट होता है आपका, आपके प्रोग्राम के स्टार्टिंग में, मतलब क्लास डिफाइन कर रहे हो या फिर मेथड डिफाइन कर रहे हो या वेरिएबल्स डिफाइन कर रहे हो। ठीक है। यहाँ पे हमने दिए नहीं है, बताती हूँ मैं बाद में। ठीक है। तो ये आप डिफाइन कर सकते हो विद द पब्लिक इटसेल्फ। ठीक है। ये पब्लिक है। जब आप पब्लिक देते हो, एज द नेम सजेस्ट, इट इज पब्लिकली अवेलेबल, मतलब आपके पूरे प्रोजेक्ट में आप
कहीं से भी इसको एक्सेस कर सकते हो, पब्लिक मेंबर्स को। जो भी पब्लिक मेंबर्स रहेंगे, आपका क्लास रहेगा, मेथड्स रहेंगे, वेरिएबल्स रहेंगे, जिसको भी आप ये पब्लिक मॉडिफायर दे रहे हो, वो पब्लिकली अवेलेबल होगा। ठीक है, सो यहाँ पे पब्लिकली अवेलेबल होगा। तो दो दैट वेरिएबल, मेथड और क्लास, जो भी है, जो भी मेंबर है आपका, सेम पैकेज में है या डिफरेंट पैकेज में है, आप पूरे प्रोजेक्ट में उसको कहीं से भी एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, ये पब्लिक है। जब आपको कुछ सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी होती है, जैसे कि हम अगर डेटा है, ईमेल एंड पासवर्ड अगर हमें सेव करना है, तो पासवर्ड का डेटा तो हम ऐसे स्टोर नहीं करेंगे ना किसी को भी। सारे, अगर मैंने सारे क्लासेस को एक्सेस दे दिया तो फिर नहीं चलेगा। अगर मेरे पास कार्ड नंबर है, तो कार्ड नंबर के लिए भी हम उसको पब्लिक नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते? सबके लिए थोड़ी ना अवेलेबल रखना होगा, कहीं से भी कोई भी डेटा हम एक्सेस कर सकते हैं, राइट? सो वो एक्सेस, हमें विजिबिलिटी कंट्रोल कम करनी है, डेटा सिक्योर करना है, तब डेटा सिक्योर करने के लिए हम यूज करते हैं प्राइवेट डेटा टाइप। ठीक है, सॉरी, प्राइवेट एक्सेस मॉडिफायर। ठीक है, सो प्राइवेट एक्सेस मॉडिफायर जब भी आप देते हो, तो जो भी मेंबर्स प्राइवेट है वो सिर्फ और सिर्फ उसी क्लास में एक्सेसिबल रहेंगे। प्राइवेट अगर आपने दिया तो सिर्फ और सिर्फ सेम क्लास में ही वो मेंबर एक्सेसिबल रहेंगे। तो वो मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करती हूँ। एक क्लास क्रिएट करते हैं, एक्सेस मॉडिफायर्स। अभी मैंने क्लास क्रिएट किया, वो भी पब्लिक ही हो गया, राइट? सो यहाँ पे मैं प्राइवेट मेंबर क्रिएट करती हूँ, प्राइवेट एक्स, सॉरी, प्राइवेट के बाद आपको डेटा टाइप देना होता है, एंड उसके बाद आप वेरिएबल नेम दे सकते हो। अगर उसकी वैल्यू आपको देनी है तो दे सकते हो। ठीक है, सो ये प्राइवेट है, दैट मीन्स ये प्राइवेट मेंबर एक्सेसिबल विद इन दिस क्लास इटसेल्फ। ठीक है, सो यहाँ पे मैं इसको एक्सेसिबल विद इन सेम क्लास, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है जब भी आप एप्लीकेशन डेवलप करते हो। तो एक्सेस मॉडिफायर्स, विजिबिलिटी कंट्रोल्स आपको डिफाइन करना बहुत जरूरी होता है। आपको किस तरीके से विजिबिलिटी देनी है, किसको देनी है, ये आप डिफाइन कर सकते हो बेस्ड ऑन दीज मॉडिफायर्स। ठीक है, ये विजिबिलिटी कंट्रोल के लिए यूज होता है। तो ये पब्लिक है, दैट मीन्स एक्सेसिबल टू ऑल, एक्सेसिबल टू ऑल क्लासेस। ठीक है, ये एक्सेसिबल टू ऑल क्लासेस है, पब्लिक इज एक्सेसिबल टू ऑल क्लासेस। जितने भी पब्लिक रहेंगे वो सारे एक्सेसिबल रहेंगे ऑल क्लासेस के लिए। प्राइवेट मेंबर्स है, सो सिर्फ एक्सेसिबल रहेंगे विद इन द सेम क्लास। ठीक है, सेम क्लास में आप डिफाइन कर सकते हो, बता सकते हो। ठीक है, उसके बाद आता है थर्ड वन इज डिफॉल्ट और नो मॉडिफायर। ठीक है, डिफॉल्ट और नो मॉडिफायर मतलब हमने अगर कोई मॉडिफायर दिया नहीं है आपके मेंबर्स को, दो इट इज अ क्लास, वेरिएबल और मेथड, ठीक है, तो वो डिफॉल्ट कंसिडर होगा। बाय डिफॉल्ट आपका डिफॉल्ट ही होता है। ठीक है, सो बाय डिफॉल्ट अगर नो मॉडिफायर है, तो आपका जो भी मेंबर है वो विद इन द सेम पैकेज एक्सेसिबल रहेगा। ठीक है, विद इन द सेम पैकेज एक्सेसिबल रहेगा, दो विद इन द सेम क्लास, सब क्लास और नॉन सब क्लास कुछ भी हो। ठीक है, ये सब क्लास नॉन सब क्लास आपको कंसेप्ट अभी समझ में नहीं आएगी, वो इनहेरिटेंस कंसेप्ट में आपको बताऊंगी। ठीक है, सो सेम पैकेज में आप उसको कहीं से भी एक्सेस कर सकते हो। कैसे एक्सेस करना है वो मैं बताती हूँ। अभी ये हमने क्लास एक्सेस मॉडिफायर बनाया है। ठीक है, अगर मुझे इस वेरिएबल को एक्सेस करना है, ये प्राइवेट है, जैसे मैंने बोला कि ये सिर्फ विद इन द सेम क्लास एक्सेसिबल है। इसको अगर मैं इस टाइप कास्टिंग के एग्जाम्पल में करती हूँ, ठीक है, एग्जाम्पल क्लास में एक्सेस करना चाहूंगी, तो कोई भी क्लास का अगर वेरिएबल मेथड हमें एक्सेस करना है तो उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ता है। ठीक है, यहाँ पे अगर ए डॉट मैंने लिखा, तो यहाँ पे मुझे मेन मेथड दिखाई दे रही है कॉल करने के लिए, बट वो वेरिएबल एक्सेसिबल नहीं है, यहाँ पे इसकी विजिबिलिटी हिडन है। ठीक है, इसके जगह पे अगर मैंने एक पब्लिक वेरिएबल बनाया जिसकी वैल्यू में 600 दे रही हूँ, ठीक है, तो ये पब्लिक वेरिएबल है, तो वो मुझे यहाँ पे एक्सेसिबल रहेगा। आप देख सकते हो यहाँ पे डायरेक्टली वो दिखता है, ऐसे हॉलो ग्रीन कलर का सर्कल दिखता है, ये विजिबिलिटी कंट्रोल के हिसाब से आता है। ठीक है,
तो आप इसको एक्सेस कर सकते हो, इसको आप वैल्यू भी चेंज कर सकते हो, इसकी वैल्यू भी आप चेंज कर सकते हो। ठीक है, तो पब्लिक मेंबर है तो उसको हम एक्सेस कर सकते हैं, प्राइवेट मेंबर है तो वो विजिबल ही नहीं होगा। तो ये सिर्फ और सिर्फ विद इन दिस सेम क्लास, मतलब यहाँ पे इस मेन मेथड में आप उसको एक्सेस कर सकते हो। सपोज मुझे देखना है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन स्टेटमेंट में एक्स वेरिएबल की वैल्यू मैंने डिस्प्ले की, तो विद इन द सेम क्लास आप इसको एक्सेस कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। ठीक है, अभी इसको भी ये ओके, यहाँ पे मैं कुछ ऐड कर रही हूँ लेकिन वो आपको समझ में इमीडिएटली नहीं आएगा। टॉपिक्स, ठीक है, ये जो मेंबर्स है वो इंस्टेंस वेरिएबल से, इसकी वजह से इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करके ही हमें उसको एक्सेस करना होता है, डायरेक्ट एक्सेस हम नहीं कर सकते। ठीक है, डिफॉल्ट है। सपोज मैंने यहाँ पे और एक वेरिएबल बनाया 633। ठीक है, अभी यहाँ पे ये वेरिएबल जो है वो विद इन द सेम क्लास तो अवेलेबल होता है, ये भी विद इन द सेम क्लास तो अवेलेबल है ही। तो अगर सपोज मैंने इसको ऑब्जेक्ट क्रिएट ही किया यहाँ पे एज इट इज, एक्स वेरिएबल हम एक्सेस कर सकते हैं, वाई वेरिएबल हम एक्सेस कर सकते हैं विद इन द सेम क्लास, वाई वेरिएबल को भी आप एक्सेस कर सकते हो, जेड वेरिएबल को भी आप एक्सेस कर सकते हो विद इन द सेम क्लास। अभी ये जो जेड मेंबर है ये आपका डिफॉल्ट एक्सेसिबिलिटी के साथ है। ठीक है, दिस इज विथ डिफॉल्ट और नो मॉडिफायर accessibility, so these are accessible within सेम पैकेज। अभी हमने पैकेज नहीं देखा है, ठीक है, तो पैकेज जब देखेंगे तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे एक पैकेज है डिफॉल्ट पैकेज। ठीक है, सारे क्लासेस जो है वो डिफॉल्ट क्लास डिफॉल्ट पैकेज में है। यहाँ पे हम पैकेज क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने मॉड्यूल 1 2 3 करके एक पैकेज क्रिएट किया, इन सबको मैंने मूव किया इस पैकेज में। ठीक है, तो सारे क्लासेस मेरे मूव हो गए, ऐड हो गए इसमें। तो आप देख सकते हो यहाँ पे एक स्टेटमेंट ऐड हो गया, दैट इज पैकेज स्टेटमेंट ऐड हो गया। ठीक है, पैकेज इज नथिंग बट अ फोल्डर जहाँ पे आप सिमिलर क्लासेस, सेम टाइप के क्लासेस, इंटरफेसेस वगैरह स्टोर कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं और एक पैकेज क्रिएट करती हूँ, अनदर वन पैकेज मॉड्यूल 4 पैकेज है सपोज। ठीक है, इसमें भी हम एक एग्जाम्पल क्लास क्रिएट करते हैं जिसमें मेन मेथड है। तो जो सॉरी जेड वेरिएबल जिसका डिफॉल्ट एक्सेस स्पेसिफायर हमने दिया है उसको मैं एग्जांपल में ट्राई करती हूँ एक्सेस करने के लिए, ए डॉट जेड, इट इज अवेलेबल। आप यहाँ पे देख सकते हो इसके लिए अलग सिंबल है, एक ट्रायंगल है ब्लू कलर का। तो यहाँ पे ये एक्सेसिबिलिटी बताता है आपको कि ये सिर्फ और सिर्फ डिफॉल्ट एक्सेसिबिलिटी के साथ है, दैट मीन्स ये यहाँ पे सिर्फ विद इन द सेम पैकेज एक्सेसिबल है। इसकी वैल्यू हम चेंज कर सकते हो, इसको आप एक्सेस कर सकते हो। सेम एग्जाम्पल डॉट जावा फाइल मैंने मॉड्यूल 4 पैकेज में क्रिएट की है। ठीक है, तो मैं ट्राई करती हूँ कि यहाँ पे एक्सेस मॉडिफायर का ऑब्जेक्ट हम क्रिएट कर सकते हैं क्योंकि एक्सेस मॉडिफायर्स क्लास जो है वो पब्लिक एक्सेसिबिलिटी के साथ है। तो पब्लिक एक्सेसिबिलिटी के साथ है, दैट इज वाई हम इसको कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, इसका ऑब्जेक्ट आप कहीं पे भी क्रिएट कर सकते हो। अभी इस से हम y वेरिएबल को चेक करेंगे। y वेरिएबल हमारा एक्सेसिबिलिटी पब्लिक के साथ है, ये पब्लिक है, दैट इज वाई हम इसको एक्सेस कर सकते हैं, ये भी पब्लिक ही है। ठीक है? अभी a डॉट एक्स वेरिएबल यहाँ पे नहीं होगा क्योंकि x वेरिएबल जो है वो आपका प्राइवेट है। ठीक है, तो प्राइवेट अगर है तो सिर्फ और सिर्फ आपका विद इन द सेम क्लास ही एक्सेसिबल रहेगा। z ये भी एक्सेसिबल नहीं होगा क्योंकि z
कि एक्सेसिबिलिटी डिफॉल्ट है, दैट मीन्स ओनली विद इन द सेम पैकेज ही वो एक्सेसिबल रहेगा। एक्सेसिबल ओनली विद इन द सेम पैकेज, ठीक है। सेम यहाँ पे भी मैं लिखती हूँ प्राइवेट है, दैट इज वाई इसको हम एक्सेसिबल ओनली विद इन सेम क्लास। तो ये भी यहाँ पे एक्सेसिबल नहीं होगा। तो अगर आपको अलग दूसरे पैकेज में चेक करना है तो दूसरे पैकेज में आपको आइदर वो पब्लिक होना चाहिए या फिर थर्ड नेक्स्ट है इसमें अगर आपको दूसरे पैकेज में एक्सेस करना है तो दूसरा और एक एक्सेस स्पेसिफायर है, दैट इज प्रोटेक्टेड, ठीक है। अगर प्रोटेक्टेड दिया है तो प्रोटेक्टेड मेंबर्स जो होंगे वो सेम पैकेज में किसी कहीं से भी एक्सेस कर सकते हो। डिफरेंट पैकेज में सिर्फ और सिर्फ सब क्लास ही उसको एक्सेस कर सकता है, मतलब इनहेरिटेड क्लास ही उसको एक्सेस कर सकता है, सारे क्लासेस एक्सेस नहीं कर सकते। अगर सबके लिए एक्सेसिबल रखना है तो आपको पब्लिक ही एक्सेस मॉडिफायर एक्सेस स्पेसिफायर देना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर यहाँ पे मैंने कोई प्रोटेक्टेड मेंबर डिफाइन किया है एक्सेस मॉडिफायर्स क्लास में, प्रोटेक्टेड के लिए आपको प्रोटेक्टेड कीवर्ड यूज करना पड़ता है। यहाँ पे मैं वैल्यू दे रही हूँ, ठीक है। ये प्रोटेक्टेड है, प्रोटेक्टेड मेंबर एक्सेसिबल विद इन सेम पैकेज एंड सब क्लासेस फ्रॉम डिफरेंट पैकेज, ठीक है। सब क्लासेस फ्रॉम डिफरेंट पैकेज कैन ऑल्सो एक्सेस दिस। तो अभी इस प्रोटेक्टेड मेंबर को हम इस एग्जांपल में ट्राई करते एक्सेस करना। तो ए डॉट डब्ल्यू एक्सेसिबल है, यहाँ पे रेड कलर का आपको फॉलो सर्कल दिखाई दे रहा है। सो ये स्पेसिफाई करता है एक्सेस मॉडिफायर हमने दिया है प्रोटेक्टेड, ठीक है। तो इसकी वैल्यू भी आप चेंज कर सकते हो, जो भी आपको करना है वो आप कर सकते हो। एक्सेसिबल यहाँ पे है, ये प्रोटेक्टेड मेंबर है। बट सेम प्रोटेक्टेड मेंबर अगर हमने इस क्लास में एक्सेस करना चाहा, ठीक है, जो एग्जाम्पल डॉट जावा है मॉड्यूल 4 पैकेज में, यहाँ पे अगर मैं एक्सेस कर रही हूँ, ये चाइल्ड क्लास नहीं है, स्टिल आई एम ट्राइंग टू एक्सेस इट, ए डॉट डब्ल्यू, तो ये एक्सेस नहीं होगा क्योंकि ये जो मेंबर है वो मेंबर आपका प्रोटेक्टेड है एंड हमारा क्लास जो है वो इस एक्सेस मॉडिफायर क्लास को इनहेरिट नहीं कर रहा है, ठीक है। सो ये प्रोटेक्टेड मेंबर है। सो प्रोटेक्टेड मेंबर अगर है तो एक्सेसिबल विद इन सेम पैकेज एंड सब क्लासेस फ्रॉम अनदर पैकेज और डिफरेंट पैकेज भी बोल सकते हो, ठीक है। सो इसको एक्सेस करने के लिए आपका एग्जाम्पल क्लास एक्सेस मॉडिफायर क्लास का चाइल्ड क्लास होना चाहिए। Okay, so these are 4 different access specifiers जो हम यूज करते हैं, जिसको हम विजिबिलिटी कंट्रोल्स बोलते हैं, जो हम यूज करते हैं टू गिव द विजिबिलिटी टू योर जावा मेंबर्स, ठीक है। प्रोजेक्ट और एप्लीकेशन डिजाइन करते टाइम आपको ये बहुत अच्छे से देखना होता है, किसको आपको सिक्योरिटी देनी है, कैसे एक्सेस देना है, ये बहुत जरूरी होता है। सबके लिए पब्लिक एक्सेसिबिलिटी देके नहीं चलता, ठीक है। क्लियर है एक्सेस स्पेसिफायर्स? एनी डाउट? ओके पीयूष, कुछ डाउट है? हाँ। सो नॉन एक्सेस मॉडिफायर्स आर देयर जिसका एक्सेसिबिलिटी के साथ कोई लेना देना नहीं है, मतलब वो विजिबिलिटी कंट्रोल नहीं करते, बट इन सब का एक स्पेशल मीनिंग होता है, ठीक है। ये हम स्पेशल पर्पस के लिए यूज करते हैं। जैसे नॉन एक्सेस मॉडिफायर से स्टैटिक, फाइनल, एब्स्ट्रैक्ट, सिंक्रोनाइज्ड, ट्रांजिएंट, वोलाटाइल एंड स्ट्रिक्ट, ठीक है। तो स्टैटिक, जैसे यहाँ पे मेन मेथड को स्टैटिक दिया गया है, स्टैटिक का सेपरेट हम देखने वाले हैं, कहाँ कहाँ पे ये नॉन एक्सेस मॉडिफायर्स आते हैं वो देखेंगे।
तो इस मेन मेथड को स्टैटिक दिया गया है। मैंने इंटीजर क्लास में से भी आपको स्टैटिक मेथड्स दिखाए, राइट। तो वैसे ही ये सारे मेथड्स को, वेरिएबल्स को हम स्टैटिक दे सकते हैं। फाइनल इज यूज्ड इन इनहेरिटेंस कंसेप्ट, ठीक है। सो इनहेरिटेंस को रोकने के लिए अलग अलग तरीके से हम फाइनल कीवर्ड का यूज करेंगे। एब्स्ट्रैक्ट इज यूज्ड फॉर एब्स्ट्रैक्शन पर्पस, ठीक है। तो एब्स्ट्रैक्शन जो ओओपी का फीचर है उसके लिए एब्स्ट्रैक्ट हम यूज करेंगे। सिंक्रोनाइज्ड इज यूज्ड इन मल्टी थ्रेडिंग कंसेप्ट, ठीक है। ट्रांजिएंट ऑल्सो यूज्ड इन मल्टी थ्रेडिंग में ही हम उसको यूज करते हैं। वोलाटाइल एंड स्ट्रिक्ट एफपी, स्ट्रिक्ट एफपी ज्यादा हम यूज नहीं करते। स्ट्रिक्ट एफपी इज यूज्ड फॉर स्ट्रिक्ट फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स के लिए हम यूज करते हैं, ठीक है। सो इसका विजिबिलिटी रिलेटेड कुछ भी लेना देना नहीं है, बट ये जो कीवर्ड्स है ये सारे कीवर्ड्स है, ठीक है। तो इन सब का एक प्रॉपर मीनिंग है, जो प्रॉपर मीनिंग हम उस टॉपिक में जहां पे भी इसको यूज करना है वहां पे मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी, ठीक है। क्लियर है एक्सेस मॉडिफायर्स एंड स्पेसिफायर्स? एनी डाउट? तो एक बार इसको रिवाइज कर लेंगे। मॉडिफायर्स है पब्लिक, जिसको हम क्लास को अप्लाई कर सकते हैं, क्लास वेरिएबल को कर सकते हैं, मेथड्स को कर सकते हैं। मेथड वेरिएबल को ये एक्सेस मॉडिफायर्स अप्लाई नहीं होते हैं कोई भी, ठीक है। मेथड के अंदर जो हम वेरिएबल्स डिक्लेयर करते हैं जैसे कि यहाँ पे किए हैं, ये एक्सेस मॉडिफायर्स का मेन मेथड है, ठीक है। इसके अंदर अगर हमने कोई भी मेथड वेरिएबल्स डिफाइन किए तो इसको हम कोई भी प्राइवेट, प्रोटेक्टेड वगैरह एक्सेसिबिलिटी नहीं प्रोवाइड कर सकते। ये सिर्फ और सिर्फ क्लास लेवल के मेंबर्स को ही एक्सेसिबिलिटी प्रोवाइड कर सकते हैं। मेथड के अंदर जो वेरिएबल्स हम डिफाइन करते हैं, दीज वेरिएबल्स आर नोन एज लोकल वेरिएबल्स, ठीक है। इसका स्कोप जो होता है सो विद इन सेम क्लास, सॉरी सेम मेथड रहता है। इसी मेथड के लिए सिर्फ ये मेंबर यूज होता है, मतलब एक्सेसिबल सिर्फ और सिर्फ ये जो ब्लॉक है इसके अंदर ही आप इसको यूज कर सकते हैं। आउटसाइड ऑफ दिस ब्लॉक यू कैन नॉट यूज द सेम वेरिएबल, ठीक है। सो दैट इज वाई इसको हम कोई भी विजिबिलिटी कंट्रोल्स मतलब एक्सेस मॉडिफायर्स देते नहीं है। ये मेंबर्स जो है, जो वेरिएबल्स आप मेथड के अंदर डिफाइन करते हो, उन वेरिएबल्स को लोकल वेरिएबल्स कहा जाता है, ठीक है। क्लियर? ये जो मेंबर्स हमने डिफाइन किए हैं इन सारे मेंबर्स को इंस्टेंस वेरिएबल्स कहा जाता है, बट इंस्टेंस वेरिएबल्स को मैं डिटेल में आपको बाद में बताऊंगी। प्राइवेट अगर मॉडिफायर है तो वो सिर्फ क्लास वेरिएबल्स एंड मेथड्स को दिया जाता है। क्लासेस भी होते हैं प्राइवेट, बट वो अलग तरीके से हम लिखते हैं, वो आपको अभी जरूरत नहीं है। आप सिर्फ अभी के लिए ध्यान में रखो कि प्राइवेट हम क्लास वेरिएबल्स एंड मेथड्स को डिफाइन करते हैं। प्रोटेक्टेड है तो वो भी क्लास वेरिएबल्स एंड मेथड्स को ही डिफाइन करते हैं। डिफॉल्ट मॉडिफायर जो है वो क्लास को, क्लास वेरिएबल्स को एंड मेथड्स को डिफाइन करते हैं। फाइनल कीवर्ड जो है वो क्लास को, मेथड्स को, क्लास वेरिएबल्स को एंड मेथड्स को एंड मेथड वेरिएबल्स को भी हम डिफाइन कर सकते हैं। एब्स्ट्रैक्ट सिर्फ क्लासेस होते हैं एंड मेथड्स होते हैं। स्ट्रिक्ट एफपी अगर आपको यूज करना है तो वो सिर्फ क्लास के लिए होगा या फिर मेथड्स के लिए होगा। ट्रांजिएंट कीवर्ड्स जो होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ क्लास वेरिएबल्स को अप्लाई होते हैं, बाकी किसी को नहीं। सिंक्रोनाइज जो होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ मेथड्स को अप्लाई होता है, बाकी किसी को नहीं। नेटिव भी एक नॉन एक्सेस मॉडिफायर है। अगर नेटिव मेथड, जैसे मैंने जेवीएम में बताया था, अगर आपको हार्डवेयर स्पेसिफिक मेथड लिखनी है तो उसको आप नेटिव बना सकते हो, तो ये सिर्फ और सिर्फ मेथड्स को ही अप्लाई होता है। वोलाटाइल जो है वो सिर्फ और सिर्फ क्लास वेरिएबल्स को अप्लाई होता है। स्टैटिक हम क्लास वेरिएबल्स को, मेथड्स को अप्लाई कर सकते हैं, क्लास को भी अप्लाई कर सकते हैं बट डायरेक्टली नहीं, उसके लिए अलग कंडीशंस होते हैं, तो वो हम जब पढ़ना है तब बताऊंगी, ठीक है। तो अभी के लिए स्टैटिक भी आपको ध्यान में रखना है कि क्लास वेरिएबल एंड मेथड्स को ही आप अप्लाई करो। क्लियर? एनी डाउट? नो ठीक है। मैम। Okay, so we have completed your module 3 and we will continue with the module 4 in the next session with the operators and constructs, जहाँ पे आपका प्रैक्टिकली देखेंगे कि अलग अलग कौन से ऑपरेटर्स होते हैं। सारे प्रोग्रामिंग में लैंग्वेज में ये होते ही है, फिर भी यहाँ पे हम देखेंगे कौन से है। एंड कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट्स, जहाँ पे कंडीशंस वगैरह आपको समझनी है, कैसे देनी है प्रोग्रामिंग का, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ठीक है।
सो दिस इज अ बेसिक पॉइंट्स जो हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे. थैंक यू एवरीवन. यू मे लीव. वी विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट सेशन. अगर कुछ डाउट है तो पूछ लो. मॉड्यूल 1 का पीडीएफ मैंने ऑलरेडी शेयर कर दिया है. मॉड्यूल 2 मॉड्यूल 3 का मैं शेयर कर दूंगी. एंड मॉड्यूल 1 का जो भी आपका असाइनमेंट है वो भी आपके पोर्टल पे, आपके डैशबोर्ड के ऊपर आप किया हुआ है. आपको वो सॉल्व करना है. ठीक है. बाकी के मॉड्यूल्स के 3 मॉड्यूल्स तक भी मैं अपलोड कर दूंगी. आप वो भी कर सकते हो. क्लियर? Okay, thanks. Okay. Thank you, Piyush. Thank you, Shweta. So you may end the meeting.
Okay.